Hello students, today I am going to discuss the exercise 5.1. The first question from your NCERT book. If fx equal to f 5x minus 3, so you have to prove that is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and x equal to 5. How can we solve it? At first I am going to take x 0 negative of 5x minus 3. So we put the value of x here at 0, 5 into 0 minus 3, it is minus 3. Then limit x tends to 0 positive. 5x minus 3, again I will put 0 in the place of x. Now f0, f0 is 5 into 0 minus 3, it is minus 3. All the values comes out minus 3. Here LHL equal to RHL equal to f0. So it is continuous at x equal to 0. Similarly for minus 3, second part, limit x tends to minus 3 of negative of 5x minus 3. 5 into minus 3, it is minus 15, minus 3, it is minus 18. Then limit x tends to minus 3 positive, 5x minus 3. 5 into minus 3, minus 15, minus 3, it is minus 18. Then f minus 3. 5 minus 3 minus 3, it is minus 15, minus 3, minus 18. So, continuous at x equal to minus 3. And the last one is at x equal to 5. So, limit x tends to 5 negative of 5x minus 3. It is 5 into 5 minus 3, 25 minus 3, 22. Then limit x tends to 5 of positive of 5x minus 3. 5 into 5 minus 3 equal to 25 minus 3, it is 22. Then f5, 5 into 5 minus 3, it is 22 minus 3, 25 minus 3, 22. Again LHL equals RHL equal to f5. So continuous at x equal to 5. By this way we can solve any questions for the continuity. Now I am going to take another question. This is question number 3rd, because question number 2 is similar like that question number 1st. Examine the following functions for continuity. The first one is question number 2. fx equal to x minus 5. यहाँ पर आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है continuity के लिए, खाली आपको continuity डिस्कस करनी है. तो हम एज्यूम करेंगे let fx is continuous at x equal to a, where a belongs to r. कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो हम क्या करेंगे, लिमिट x tends to a negative of x minus 5, it is a minus 5. Then limit x tends to a positive of x minus 5, it is a minus 5. Then fa, it is again a minus 5. So LHL equal to RHL equal to fa. So continuous at x equal to a. Similarly we can do the another parts like this procedure. Now pause the video and note it down it. Now question number 4, fx equal to x to the power n, and you have to prove at x equal to n it is a continuous function. Question is, prove that fx equal to x to the power n is continuous at x equal to n, where n is a positivity. Right, first I am going to take limit x tends to n negative of x to the power n, it is n to the power n. Then limit x to the power n positive, x to the power n, it is again n to the power n. Then fn, it is n to the power n. LHL equal RHL equal fn. So continuous at x equal to n. This is question solution of question number 4. Now I am going to take the question number 6. What is the question? fx equal to, you have given that 2x plus 3 when x is less than or equal to 2, and 2x minus 3 when x is greater than 2. You have to find out
the discontinuity. Now how can do it? तो 2 को चेक करेंगे, 2 पर चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ 2x प्लस 3, इट इज 2 into 2 plus 3 7, देन लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ 2x minus 3, क्योंकि ग्रेटर देन 2 आ गया तो ये वाला फंक्शन दिया जाएगा 2 into 2 minus 3, it is 4 minus 3 1. LHL is not equal to RHL, so discontinuous at x equal to 2. पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी आपसे पूछ रहा था, तो हमने देखा कि इसके LHL और RHL इक्वल नहीं आई 2 पर, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया 2 पर। इसके अलावा ये किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि दोनों आपके जो फंक्शंस हैं वो लीनियर एक्सप्रेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट इज fx इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट मॉडुलस x प्लस 3 मॉडुलस x प्लस 3 और x is less and equal to -3 minus 2x, और यहाँ पर है -3 is less than x is less than 3 और 6x plus 2, और इसकी जो रेंज आपको दे रखी है वो x is greater than equal to 3 दे रखी है, और आपको इसमें पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है कि पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 3 पर, लिमिट x टेंड्स टू -3 ऑफ नेगेटिव मॉडुलस x प्लस 3। अब अगर 3 से छोटी वैल्यूज आप लेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे -3 प्लस 3, 3 प्लस 3 ये आपके पास 6 आ जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, इसके लिए आप ये वाला फंक्शन लेंगे -2x, मीटर चेंज कर रहा है ये, तो -2 into -3 ये भी आपके पास क्या आ गया +6 आ गया। तो ये आ गया आपके पास कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब +3 के लिए देखिए कॉमन वैल्यूज दोनों में ये है, तो आपने लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ -2x किया तो ये -6 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव करेंगे तो 6x प्लस 2 करेंगे तो 6 into 3 plus 2 18 plus 2 कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर देखिए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई x इक्वल टू 3 पर। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन वी show that continuity or discontinuity? At first we find out the common values 1 1, limit x tends to 1 negative of 3, it is 3, and limit x tends to 1 positive of 4, it is 4. Now LHL is not equal to RHL, so discontinuous at x equal to 1. Now another one, limit 3 is the common value for the both functions, x tends to 3 negative of 4, it is 4. Limit x tends to 3 positive of 5, it is 5. Again LHL is not equal to RHL, so discontinuous at x equal to 3. Now this is the solution of this question. Now I am going to take another one, and this is question number 17. What is the question number 17? It is fx equal to ax plus 1, x is less than equal to 3, and bx plus 3 when x is greater than 3 is continuous at x equal to 3. So we have to find the value of a and b. इस क्वेश्चन में आपको fx equal to ax plus 1, x is less than equal to 3 दे रखा है, bx plus 3, x is greater than 3. ये कॉन्टिन्यूअस है, आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूव नहीं करना है, ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस आपको गिवन है, आपको उसमें a और b में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू
x टेंस टू 3 नेगेटिव ऑफ ax प्लस 1, तो ये आपके पास 3a प्लस 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव ऑफ bx प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा 3b प्लस 3। तो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, सो हम ये कह सकते हैं कि LHL और RHL इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 3a प्लस 1 जो होगा 3b प्लस 3 के इक्वल होगा। 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस b इक्वल टू 2 या a माइनस b इक्वल टू 2/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, a माइनस b इक्वल टू 2/3। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका है कि fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो होगा वो डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो लेट fx is discontinuous at x equal to a where a belongs to R। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लिमिट x टेंस टू a negative a x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। फिर यहाँ लेट एज्यूम करेंगे x इक्वल टू a माइनस h वेयर s टेंस टू 0। ये जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 a माइनस h और माइनस a माइनस h। क्लास 11th में आपको बताया गया है कि a माइनस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो a माइनस 1 होता है। यहाँ लिमिट पुट कर दीजिए a माइनस 0 माइनस a प्लस 1, तो ये 1 आ जाएगा। अगेन x इक्वल टू a प्लस h पुट करेंगे वेयर s टेंस टू 0 होगा। तो लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस h माइनस a प्लस h। a प्लस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा a होता है। तो लिमिट s टेंस टू 0 a प्लस h माइनस a, इससे कैंसिल आउट हो गया, लिमिट 0। इस तरह से आपने देखा कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो डिस्कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें डिस्कंटिन्यूटी आपको प्रूव करनी है। जैसे आपने ले लिया क्वेश्चन नंबर 26, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 को कैसे सॉल्व करना है। fx इक्वल टू a cos x अपॉन पाई माइनस 2x, x इज नॉट इक्वल टू π/2 और यहाँ 3 है और कॉमा है x इक्वल टू π/2। अब इसमें क्या है, आपको ये गिवन है कि ये π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सीधे सीधे नहीं करेंगे, लेट मैं यहाँ यूज कर लूंगा। पहले फंक्शन लिख लेते हैं। fx इक्वल टू आपके पास है a cos x अपॉन पाई माइनस 2x, तो लिमिट x टेंस टू π/2 a cos x अपॉन पाई माइनस 2x, लेट x इक्वल टू π/2 प्लस h रखते हैं और यहाँ s टेंस टू 0 ले लेंगे। तो लिमिट s टेंस टू 0 a cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, लिमिट s टेंस टू 0 a sin cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन अपॉन पाई माइनस 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस 2h, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट s टेंस टू 0 माइनस a साइन h ओवर माइनस 2h, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट s टेंस टू 0 a इंटू साइन h ओवर h इंटू 1/2। अब लिमिट पुट करेंगे तो k इंटू 1 होता है और इंटू 1/2, तो ये आ गया k/2 और k/2 क्योंकि ये इक्वल है तो ये fa के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/2 इक्वल टू आ जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू 6। इस तरीके से अगर k इक्वल टू 6 अगर यहाँ पर आ जाए तो ये फंक्शन π/2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टिपिकल प्रॉब्लम्स मुझे आपके एक्सरसाइज में लगी वो मैंने आप लोगों से डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो चैट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा डिफरेंशियलिटी, एंड होप सो कि जल्दी आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे अपने फेयर नोट्स। थैंक यू।